Good morning, friends. A very warm welcome to the IS Hub. Guys, let's start the session. So, let's first look into these words of wisdom. Now, Sun Tzu is a Chinese scholar and he has stated this thing. Even the finest sword plunged into salt water will eventually rust. The finest sword plunged into salt water. What does this mean? He's trying to say that environment in which we are living, our surroundings, our company, your friends, your family members. So wherever you are staying, your environment, people around you, it will have impact on you. And if you are surrounded by like-minded people, you will grow. आप grow करोगे. But if you are not surrounded by like-minded people, and if some of them are, you can say, not good human beings, it will definitely impact you as well. और उसका असर आपके अंदर भी दिखना शुरू हो जाएगा. This is what he tried to say. That eventually even the good sword, if you are plunging it into salt water में डुबा के रखेंगे, तो वो भी rust करने लगेगी, खराब होने लगेगी. So this is the lesson that we have to understand, that surrounding people around us, they are very important. And he is suggesting that we should be, you can say, staying with individuals who can add value to you, जो आपके growth में आपको help कर सके, आपको कुछ सिखा सके. So you should be guided by those things. Okay, you should be surrounded by those type of people, good people basically. अगर आप खराब लोगों के बीच रहेंगे तो डेफिनेटली उसका असर जरूर देखने को मिलेगा. नाउ इन टुडे सेशन वी विल बी टेकिंग अप दीज 7 टॉपिक्स इन डिटेल एंड आफ्टर दैट आई विल लुक इनटू द न्यूज़पेपर फॉर द लेफ्ट ओवर थिंग्स कि कुछ चीज़ अगर बच गई है तो फिर हम अखबार को उठा के देखेंगे. बट मेजर चीज़ें हैं, इन चीज़ों को थोड़ा डिटेल में किया जाएगा. सो लेट्स लुक इनटू दिस. नाउ इंडियंस दे आर गिविंग अप देयर सिटीजनशिप. अब ये ट्रेंड देखने को मिला है, स्पेसिफिकली द हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, मतलब जिनकी वैल्यू की बात करें तो $1 मिलियन से ज़्यादा जिनकी वर्थ है. ओके, जिनकी वेल्थ समवेयर अराउंड, अगर आप रुपीज़ में कैलकुलेट करोगे तो 8.2 करोड़ से जिनकी ज़्यादा वेल्थ है, बेसिकली लॉट ऑफ देम दे आर लीविंग इंडिया. नॉट जस्ट लीविंग इंडिया, दे आर मूविंग आउट एंड दे आर लुकिंग फॉर द सिटीजनशिप ऑफ सम अदर कंट्री. नाउ ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? So basically the major reason is that they want better living standards. और उनको ऐसा लगता है कि इंडिया के अंदर वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अब नहीं है. बेटर लिविंग स्टैंडर्ड्स, यू टॉक अबाउट एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन, health is also a major concern for the people. Now in this one case study is written that how a family moved to Canada. So when they were staying in India, उनको लंग्स इन्फेक्शन था, बट एज दे मूव टू कनाडा लंग इन्फेक्शन चला गया. It's about the clean air that they have, and we already know that if you look into the air quality index, it has stated that like among the top 20 worst cities, 10 to 15 are Indian cities. जो पूरी दुनिया के 20 सबसे खराब पोल्यूशन वाले शहर हैं, उनमें से 15 से 10 इंडिया के शहर आ जाते हैं. So there it's a trouble, means health is also a concern for people these days, and this is one of the reason that they think that we should shift to some other area. किसी और country के अंदर जाके shift हो जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं. Okay, so this is what is being pointed out. Now let's look into these things. Your constitution is not defining the term citizen. ये टर्म डिफाइन नहीं कर रखी. थोड़ा बहुत क्राइटेरिया उन्होंने दिया हुआ है, लाइक हु आर टू बी इंक्लूडेड एज सिटीजन, किनको कैसे बनाया जाएगा. बट मेजरली वी डू हैव अ सिटीजनशिप एक्ट विच मेंशंस अबाउट सर्टेन थिंग्स, हाउ अ पर्सन कैन अटेन सिटीजनशिप, कैसे जो है आप सिटीजनशिप ले सकते हैं, कैसे जो है आप सिटीजनशिप अपनी खो भी सकते हैं. सो इन दैट पर्टिकुलर थिंग, so citizenship can be lost by renunciation, that a person is announcing this to the world कि भाई मैं हिंदुस्तान की जो है सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ. नेक्स्ट इज by termination. Okay, then you have deprivation. So these are the ways through which you can give up your citizenship. Now there are criteria attached to this. ये criteria है अलग अलग के अंदर.
what I am trying to say is this: open up your Lakshmikant book, okay? आप अपनी लक्ष्मीकांत जो है वो बुक यहाँ पे खोलेंगे, एंड दिस इज योर होमवर्क, प्लीज डू हैव अ लुक। एक बार आपको जरूर आज जाके देखना है कि सिटीजनशिप का क्राइटेरिया क्या है, उस डिटेल को एक बार आप जरूर पढ़ेंगे। ये स्टैटिक कंपोनेंट है और ये साथ के साथ हमें पढ़ना है, ओके? आई कैन अंडरस्टैंड द वॉइस इज लो, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू स्पीक लाउडली। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचे, मैं बहुत लाउड यहाँ पे बोल रहा हूँ। प्लीज़, देर इज सम टेक्निकल फ्लॉ दैट इज गोइंग ऑन। येस्टरडे वॉज संडे, टुडे इट्स अ वर्किंग डे, वी विल मेक श्योर दैट दिस इशू इज रिजॉल्व्ड। So please cooperate here. Please, this is my request to all of you. I am trying my level best. I am speaking quite loudly. Okay? चलिए. So I'll try that my voice will not, you can say, sound low to you. मेरी आवाज बुलंद रहेगी और आपको जरूर सुनाई देगी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। So now please have a look over this particular question. It's a prelims question 2018 and it says that, ये बोल रहा है, एक मिनट, what it is stating, it is stating this that आधार can be used as a proof of citizenship or domicile। क्या आधार citizenship का proof हो सकता है? No, आधार cannot be a proof for citizenship or domicile। so ये point बिल्कुल गलत हो गया, इस reason के लिए आधार इन्होंने बनाया ही नहीं था। This wasn't the reason that Aadhaar was coined. Basically, it's a tool to deliver the public goods to the people। लोगों तक सरकारी सुविधाएं पहुंचाने का एक तरीका मात्र है, सिटीजनशिप का कोई भी इसमें लेना देना नहीं है। Now, next it is saying, once increased, once issued, Aadhaar number cannot be deactivated or omitted by issuing authority। This statement is also absolutely wrong। एज इट कैन बी ओमिटेड, इसको हटाया भी जा सकता है, तो ये जो स्टेटमेंट है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग एंड द राइट आंसर इज डी, नाइदर वन नोर टू, दिस इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ओके, सो दैट्स द पॉइंट हियर। सो थैंक यू सचिन, आगे बढ़ते हैं। सो प्लीज हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर, यू कैन से आर्टिकल और एडिटोरियल। नाउ व्हाट इट इज सेइंग, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ पॉलिटिशियंस। तो ये आज का एडिटोरियल है और ये कह रहा है कि क्लैरिटी नहीं है अभी। अब दरअसल हुआ क्या है, देयर इज दिस केस दैट हैज इरप्टेड, और देखिए मिस्टर फैजल, नाउ ही वाज कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट, ही वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट but was convicted by a court, and what happened, he was sentenced to 10 years of imprisonment। now you must be knowing this thing, there is this disqualification attached to the person who is convicted, जो convict हो जाएगा, and if the term, जो पनिशमेंट की टर्म है, इफ इट इज मोर देन 2 years, अगर वो 2 साल से ज्यादा है, देन दैट पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम रिकंटेस्टिंग। सो दिस अरेंजमेंट इज देयर एट प्रेजेंट। नाउ व्हाट हैज हैपेंड, अब यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई है, देखिए, इनको कन्विक्ट डिक्लेयर किया गया, ठीक है, ही हैज बीन कन्विक्टेड, लोकसभा इशूड दैट ही हैज बीन डिस्क्वालिफाइड, लोकसभा ने बोला कि ये डिस्क्वालिफाई भी हो जाएंगे। ही मूव टू हाई कोर्ट, ये व्यक्ति जाता है हाई कोर्ट के अंदर, एंड हाई कोर्ट पॉइंटेड आउट दिस थिंग दैट अभी हम स्टे लगा रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन पे। जो जजमेंट था जिसमें ये 10 साल की सजा मिली थी वो जजमेंट पे ही उन्होंने स्टे लगा दिया। अब उस जजमेंट पे स्टे लगाया हुआ है, ठीक है, क्या इसका मतलब ये है कि जो लोकसभा की मेंबरशिप खाली हुई होगी, विल ही बी रीइंस्टेटेड? अभी इसको वहां से डिस्क्वालीफाई किया था, क्या ये वापस अपनी सीट ले सकता है? सो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन दैट इज देयर। नाउ यू हैव टू पॉइंट आउट दिस थिंग। सो व्हाट हैज हैपेंड, देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, देखिए आप कितने चीजें फास्ट हो रही हैं। सो बेसिकली ऑन 11th of January ही वाज कन्विक्टेड, ठीक है, ऑन 13th of January विद इन 2 days लोकसभा अनाउंस्ड दैट ही वाज डिस्क्वालिफाइड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, डिस्क्वालीफाई भी हो गया। अब देखिए 18 जनवरी को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इट हैज अनाउंस्ड बाय इलेक्शन। अब वहां पे बाय इलेक्शन भी अनाउंस हो चुका है और बाय इलेक्शन की डेट क्या आई है, बाय इलेक्शन की डेट दैट हैज बीन फिक्स्ड इज 27 फरवरी। 27 फरवरी को बाय इलेक्शन की डेट आती है, अभी तक बाय इलेक्शन हुआ नहीं है। नाउ नोटिफिकेशन जो इशू होगा दैट वाज इशूड ऑन 31st of January। What happened that guy Mr. Faisal, he approached to the high court। अब ये हाई कोर्ट चले जाते हैं अपनी कन्विक्शन के ऊपर स्टे लगवाने के लिए,
And what's the law of jurisprudence say? You are treated as innocent until proven guilty. जब तक आपको guilty prove नहीं किया जाएगा, आप innocent माने जाएंगे. This is what the system says. So here, Mr. Faisal, now it means that High Court is saying it and he is innocent. लेकिन पीछे से तो membership जा चुकी है. So there it's a major, you can say, question here. Now there are few things that are to be looked into. The question is now whether Mr. Faisal, he will automatically resume his membership. By High Court ने तो stay लगा दिया. Other point is this, you have to understand, Article 102 of Indian Constitution, it holds certain conditions based for the disqualification. It says that we do have office of profit as one condition, being of unsound mind and insolvency other, not being a citizen of India is the third criteria that has been defined in the Constitution. इसके अलावा there are other disqualifications that are mentioned and those are mentioned in Representation of People's Act 1951. Now, this has been the judgment. ये judgment court ने दिया है. The person who has been imprisonment for 2 years or more, that person will be disqualified for the period of imprisonment and further 6 years. अपनी सजा पूरी करके आएगा और उसके बाद 6 साल तक that person will be disqualified. He will not be allowed to contest election again. So this is the present criteria that we have. अब आप इसके अंदर देखिए the Lily Thomas judgment. Lily Thomas judgment. This was the Lily Thomas judgment. It required the seat to be vacated immediately. Immediately आपको ये seat vacate करनी पड़ेगी. Whereas Kerala High Court straight tries to ensure the MP retains the seat until appeal is decided. Court कुछ और कह रहा है और पुराना judgment कुछ और कह रहा है. So this is the dilemma that they are facing right now. Now it will be debated again. Things will be made clear. लेकिन ये आज की डेट में एक problem है. There is lack of clarity on the disqualification, even in this particular case. Or why this particular arrangement was done? Basically, we want clean politics. हमें चाहिए clean politics यहाँ पे. Clear? This is the goal. Okay? And if I go ideally, अगर मैं ideally बात करूँ, it should be done by legislature. Political parties अपने आप को खुद clean करें. ठीक है जी? Political parties जो हैं, वो अपने आप को खुद clean करें. Tainted आदमियों को आप सीट क्यों देते हो? जिनके ऊपर already case चल रहे हैं, why are you giving them the seats? Why are you allowing them to basically contest election? So this should be done ideally, but there is reluctance at the end of legislature और हमारी political parties सुधरती नहीं हैं. So again, this reform, ये जो reform आ रहा है, this reform is also facilitated by judiciary. Okay, ये judiciary facilitate कर रही है and this will be an example of judicial activism. Okay, ये judicial activism का एक example होगा. Now the question is this judicial activism bad or good? क्या इस type का judicial activism which is reforming the system, is it good or bad? That's the point here. Okay, so you have to answer this. Just put it in the comment section. अगर मेरी आवाज loud and clear आ रही है आपको तो इसका जवाब दें. क्या judiciary गलत कर रही है? Because lot of time we say that judicial activism is bad. Judiciary is entering the domain of legislature. We do have separation of power in the country. This and that. हम वो सारी बातें करते हैं. लेकिन ये point बताएं आप. चलिए. Now please have a look over this particular question. So this question says that consider the following statement, and first statement is according to the Constitution of India, a person who is eligible to vote can be made a minister of in a state for 6 months. देखिए ये statement गलत हो जाती है. क्यों? क्योंकि हर आदमी जो वोटर है वो नहीं इलेक्ट होता, वो नहीं कंटेस्ट कर सकता. There is an age limit of 25 years. 25 साल की एज लिमिट है यहाँ पे, उससे बड़ा ही आदमी कंटेस्ट कर पाएगा. So this statement is going to be wrong. Then the second statement says that according to Representation of People Act 1951, a person convicted for a criminal offense and sentenced to imprisonment for 5 years is permanently disqualified. ये कहता है कि permanently disqualify होगा. Permanently disqualify नहीं होगा in this particular case. Okay, इस केस के अंदर क्या है यहाँ पे arrangement? Convict जब अपनी punishment पूरी करता है. So one is the punishment, okay,
and the day on which he was convicted, जिस day को convict माना जाएगा, from that day onwards till the time he completed the punishment plus 6 years, this time will be calculated as the time of disqualification. Permanent disqualification नहीं है. So this is the point here. Okay, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. This is, you can say, other article that we need to be covering. Now it is saying that Supreme Court on sealed cover jurisprudence. देखिए, there are certain matters which are not to be, you can say, made public. बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चलते हैं, जहां पे पब्लिक में उन चीजों को नहीं डाला जा सकता, due to multiple reasons. Reason could be national security related issue, okay, plus the other reason could be, say, it can be associated with the image of a person. Defamation हो जाएगी अगर आपने नाम रिलीज कर दिया तो. So there we have this provision that is of sealed cover jurisdiction, कि भी सारी बातें पब्लिक में नहीं रखी जाएंगी, एक सील कवर में रखी जाएंगी. Someone is producing that evidence, it is to be placed in a sealed cover, और सिर्फ जज ही उसे देख पाएंगे. तो ये सील्ड कवर का एक आइडिया होता है जो अक्सर यूज किया जाता है. नाउ देयर आर मल्टीपल केसेस जब ये न्यूज में रहा है. सो टेक एग्जांपल Rafale deal. Okay, now Rafale deal, it was absolutely, you can say, confidential matter. We cannot disclose things to the public कि हम कैसे हथियार ले रहे हैं, कौन से हथियार ले रहे हैं. You don't want your, you can say, enemies to know. आप ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके enemies को पता लगे. तो ये point है यहाँ पे. अब देखिए, what happened is this, at one point we say that ठीक है, sealed cover jurisdiction is required due to these consideration, कि भाई किसी की इमेज मलाइन नहीं होगी, यहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी की चीज आपको अपहोल्ड करनी है, उसको रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, फाइन. बट when you are routinely using it, if it becomes a norm कि भी आप हर मामले के लिए आप सील्ड कवर में बात कर रहे हो, then what about our open court system? Because when you talk about Indian judicial system, it has a very important characteristics, that is your open court. हमारे यहाँ पे ओपन कोर्ट का सिस्टम है, आप भी जाके कोर्ट के अंदर सुनवाई देख सकते हो. यू कैन अटेंड द होल प्रोसीडिंग. नाउ in this particular case, at one point we say that we have to facilitate transparency, we have to facilitate openness. और दूसरी तरफ यहाँ पे जुडिशरी कहीं ना कहीं सील्ड कवर jurisdiction लेके आता है, मतलब जनता से बातें छुपाई जाती हैं. It becomes a major issue, but this time government requested the judiciary to allow sealed cover jurisdiction in this Adani case. अब अडानी का मामला चल रहा है, उसके अंदर ये गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट दी थी एफिडेविट के अंदर कि सील्ड कवर में की जाए सारी बात, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होगा वो सील्ड कवर में, वो जनता को नहीं बताया जाएगा, ओपोजिशन को नहीं बताया जाएगा. नाउ यू हैव टू टेल मी, अगर ओपोजिशन से ही बात छुपाई जा रही है दूसरी पार्टी से जिन्हें केस फाइल किया है, हाउ विल दे प्रोसीड विद द केस? वो कैसे केस को आगे बढ़ाएंगे? सो ये एक मेजर सवाल बनता है यहाँ पे. अब आप इस चीज को देखिए, Supreme Court awareness of how sealed cover jurisdiction has begun to threaten the credibility of the judicial institutions. See, I am again telling you, मैंने पहले भी ये बहुत बार repeat किया है, when you talk about citizen judiciary relationship, okay, अब citizen और judiciary का जो relation होता है, that relationship is about trust, and trust can only be facilitated if there is transparency. जहां पे ट्रांसपेरेंसी होती है, चीजें छुपाई नहीं जाती, वहां पे ट्रस्ट डेवलप होता है. सो अगेन जुडिशरी इज रियलाइजिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, एंड इन दिस पर्टिकुलर अरेंजमेंट, इन दिस पर्टिकुलर केस, दे आर सेइंग दैट वी वोंट एक्सरसाइज द सील्ड कवर ज्यूरिसडिक्शन. कोई भी बात जनता से छुपाई नहीं जाएगी. whatever facts, whatever evidences that are to be produced in the court, it will be made public then and there as part of the proceeding. So this is what your judiciary is saying here. Now, from where does judiciary exercises this sealed cover jurisdiction? देखिए, Rule 7 of Supreme Court rules provides that Chief Justice or the court, through a judicial order, direct any document to be kept confidential in the sealed cover if publication of the records is considered to be not in interest of the public.
जनता के इंटरेस्ट में जो चीज नहीं है उस चीज को यहाँ पे छुपाया जा सकता है. So this particular arrangement is already there and it is as per the Supreme Court rules. Constitution कभी भी ये बात नहीं कहेगा. हमारा Constitution तो transparency लेके आने की बात करता है. It will promote democratic principles. How can we have these type of arrangements? But on the matter of national security, seriously we require these things. लेकिन अडानी के मामले में मुझे नहीं लगता ऐसी चीज होनी चाहिए. And court is also realizing it. So they are saying that सब कुछ public domain में आएगा. Let's move to the next, you can say, news that is related to sickle cell anemia. Okay, so we need to understand some information about it. Basically, it's a genetic disorder. ये genetic disorder है. What happens in that? Due to mutation, the shape of the blood cells. Normally, the shape of the blood cells, it is round. But due to mutation, the shape changes and it takes the shape like sickle. Sickle जैसी shape हो जाती है यहाँ पे blood cells की. Normally जब blood cells round होते हैं, it allows the flow of blood. आपकी body में blood smoothly flow करता है. But अगर वो sickle shape का हो जाएगा, आपकी body में वो blood flow नहीं कर पाएगा. So there it's a life-threatening thing, and this is more common in tribals. ट्राइबल्स जो हैं इंडिया के वहाँ पे ज़्यादातर देखा जाता है. देयर इज अनदर थिंग अटैच्ड टू दिस, दैट इज इट इज मोर प्रिविलेंट वेयर एंडोगैमी. ओके, एंडोगैमी इज प्रैक्टिस्ड. सेम कम्युनिटी के अंदर ही शादियाँ हो जाती हैं, आपस में ही शादियाँ हो जाती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज में. सो देयर in those particular cases the chances of sickle cell anemia increases. So this is the information. So let's look into this. Now it's a disorder of the blood. Okay, I told you about this thing. Genetic disorder है ये, and it is more common in the tribal population than in non-tribal. Okay, research क्या कहती है? Prevalent in communities residing in areas where malaria is endemic. जहाँ पे मलेरिया ज़्यादा मिलता है वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया के पेशेंट भी आपको मिलेंगे. अब देखो होता क्या है, जो मलेरिया है, सिकल सेल अगर आपकी बॉडी में है, इट ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट मलेरिया. जिन लोगों में सिकल सेल के यहाँ पे ब्लड सेल्स सिकल सेल्स के होते हैं, शेप के हो जाते हैं, उन पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर मलेरिया का इन्फेक्शन कम देखने को मिलेगा. ये एक चीज है. नाउ it says that it is prevalent where communities that practice endogamy. उन communities में ज़्यादा है जहाँ पे endogamy ज़्यादा practice होती है. So this information is clear to you. Okay. Now we have a target to eliminate sickle cell anemia by 2047. So government is taking it quite seriously. इसको लेके जो है government बहुत serious है. अब जैसा देखते हैं थोड़ा इसको डिटेल में जानेंगे क्या है यहाँ पे. देखिए, so hemoglobin, now hemoglobin होता है हमारी बॉडी के अंदर. now it is responsible for carrying blood to different parts of your body. अब इसके अंदर 4 प्रोटीन सब यूनिट्स होते हैं, 2 अल्फा एंड 2 बीटा. होता क्या है, म्यूटेशन इन द जीन क्रिएट्स बीटा सब यूनिट्स दैट इंपैक्ट्स द शेप ऑफ ब्लड सेल. और वो दिखता कैसा है, सिकल जैसा दिखना शुरू हो जाता है. Now round red blood cells they can move easily, बहुत easily आपकी बॉडी के अंदर मूव करते हैं. बट जब ये सिकल शेप के हो जाते हैं, the flow of the blood is disrupted, and as the flow disrupts, not only that, these sickle shaped red blood cells they die early. ये जल्दी मरते हैं. जो ये सिकल शेप के रेड ब्लड सेल्स हैं, they die early, and as they die early there will be shortage of red blood cells in the body and your body will be deprived of oxygen. अब इसका इलाज क्या है, देखिए, one is this regular blood transfusion. आपको हर थोड़े टाइम के बाद ब्लड ट्रांसफ्यूज किया जाए, ब्लड जो है वो लगाया जाए. ठीक है, एक ये तरीका है. The other you can say option that we have is gene therapy. तो आजकल जीन थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपी that is available. Okay, so I told you about this thing. जीन थेरेपी है या फिर स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन है जो आज की डेट में एज अ सोल्यूशन अवेलेबल है, बट it is costly and still in the developmental stage.
इट हैज नॉट बीन मेड मार्केट, अभी तक ये हॉस्पिटल्स में पूरे तरीके से नहीं आई हैं, कुछ स्पेसिफिक जगहों पे ही ये चीजें अवेलेबल हैं. सो यस, थिंग्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन, यू हैव टू ट्रस्ट द साइंस. और ये स्टेम सेल थेरेपी वाकई ही एक जो है रेवोल्यूशनरी सॉल्यूशन लेके आएगी. नाउ व्हाट आर द स्टेम सेल्स? अगर हम बात करें ये आपके स्टेम सेल्स होते क्या हैं. सो बेसिकली योर स्टेम सेल्स, दे आर द इनिशियल फ्यू सेल्स. ये इनिशियल फ्यू सेल्स हैं, एंड थ्रू दीज स्टेम सेल्स योर अदर बॉडी सेल्स आर फॉर्म्ड. अब इसके अंदर एक होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स. ओके, एम्ब्रियोनिक स्टेज कौन सी होती है? जब एम्ब्रियो बनता है. इट इज द, यू कैन से, अर्ली स्टेज ऑफ फर्टिलाइजेशन. अभी जो है यहाँ पे सेल बनना शुरू हुआ है, बच्चा बनना शुरू हुआ है, अर्ली एज ऑफ फर्टिलाइजेशन है. एंड देयर विल बी जस्ट बंच ऑफ सेल्स. बंच ऑफ कितने सेल्स होंगे? इनिशियल जो आपके 50 to 100 सेल्स होते हैं. ओके, अभी जस्ट आपकी फर्टिलाइजेशन हुई है और 50 to 100 इनिशियल सेल्स जो होंगे, these cells will be there only say for 10 to 12 days of fertilization. इनिशियल 10-12 दिन में ऐसा रहता है, एक बंच में ये रहेंगे. those are embryonic stem cells. out of those cells your body cells are to be formed. उसके बाद आपके यहाँ पे बॉडी सेल्स बनेंगे. क्लियर है ये? नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, एक और स्टेम सेल्स होते हैं जो होते हैं मैच्योर स्टेम सेल्स. ये तो एम्ब्रियोनिक स्टेज के वाले हो गए. मैच्योर स्टेम सेल से आपके बॉडी ऑर्गेन्स बनेंगी. अब मैच्योर स्टेम सेल्स की बात करें, सपोज बोन स्ट्रक्चर बनाने का जो मैच्योर स्टेम सेल होगा, बोन स्ट्रक्चर बनाने का जो मैच्योर स्टेम सेल होगा, वो सिर्फ आपके बोन सेल्स बनाएगा. ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेज वाले हैं ना, ये तो किसी भी टाइप के सेल्स बना सकते हैं. यहां से आपके हार्ट के सेल बन सकते हैं, यहां से आपके लिवर के सेल बन सकते हैं, इधर से आपके बोन स्ट्रक्चर के सेल्स बनेंगे, मसल्स बन सकते हैं. ये मल्टीपल उसमें जा सकता है. सो दिस इज नोन एज प्लूरिपोटेंसी. प्लूरिपोटेंट, एक से बहुत ज्यादा में बन जाना. क्लियर है? ये प्लूरिपोटेंसी दिखाते हैं. जो मैच्योर स्टेम सेल हो जाएंगे, जो आपकी बॉडी में मिलते हैं बहुत जगहों पे जब आप खुद बड़े हो जाते हो, ये सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज पे है. अभी जब 10 दिन हुए हैं, रिप्रोडक्शन स्टार्ट हुए, फर्टिलाइजेशन हुए, जो ये मैच्योर स्टेम सेल हैं ये आपकी बॉडी में प्रेजेंट होंगे. लेकिन दीज स्टेम सेल्स विल जस्ट प्रोड्यूस अ सेम टाइप ऑफ सेल्स. तो जैसे मैंने बताया, लीवर का जो मैच्योर स्टेम सेल होगा वो लीवर के ही सेल बना सकता है, या फिर बोन का जो स्टेम सेल होगा वो बोन ही के ही मतलब स्टेम सेल्स बना सकता है. सो बेसिकली इन दिस अरेंजमेंट, दिस स्टेम सेल थेरेपी विल बी यूज्ड टू प्रोड्यूस मोर ब्लड सेल्स. ये एक थेरेपी है जो हमारे पास आज की डेट में अवेलेबल है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल. अफोर्ड नहीं कर सकती जनता, और ट्राइबल्स अफोर्ड करें तो आप एकदम से भूल जाओ. अदर पॉइंट इज दिस, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हमारे पास है नहीं, और इस टाइप की एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, डू यू थिंक दैट इट विल बी मेड अवेलेबल फॉर द ट्राइबल्स? ट्राइबल एरिया तक कब जाके ये पहुंचेगी? सो ये पॉइंट समझें आप, कब जाके ये ट्राइबल एरिया तक पहुंचेगी. सो दिस इज द रियली इंपॉर्टेंट थिंग हियर. आगे बढ़ते हैं यहाँ पे. प्लीज डू हैव अ लुक ओवर दिस पर्टिकुलर, यू कैन से, क्वेश्चन. PYQ है ये कहता है कि जेनेटिक चेंजेस कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स एंड स्पर्म्स ऑफ अ प्रोस्पेक्टिव पेरेंट. क्लियर है भाई? बिल्कुल, ये जेनेटिक टेक्नोलॉजी तो आज हमारे पास अवेलेबल है, ये बिल्कुल हो जाता है. ठीक है ना? फिर कह रहा है कि a person's genome can be edited before birth at the early embryonic stage. Yes, बिल्कुल अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे भी आप जीन एडिटिंग कर सकते हो. और मैं आपको एक चीज बताता हूं, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर आप जीन एडिटिंग करोगे, वहां से आप बना सकते हो. वहां से क्या बनाओगे आप?
डिजाइनर बेबी बना सकते हो. ओके, डिजाइनर बेबी. बेबी की आंखें इस हीरो जैसी होनी चाहिए, बेबी के कान इस हीरो जैसे होने चाहिए, बेबी बहुत फास्ट भाग सके, ऐसा स्पोर्ट्स एथलीट होना चाहिए, बच्चा हमारा क्रिकेट खेलेगा, ऐसे बैट्समैन के जीन होने चाहिए. Those things can be induced at this particular stage, and the human science has made that progress. यहाँ तक हम already पहुंच चुके हैं. इसका डर है, it will kill the natural thing. Okay, level playing field will not be there. जो लोग जीन एडिटिंग करके, जो लोग ये अफोर्ड कर पाएंगे, उनके बच्चे ही फिर आगे रहेंगे हर चीज के अंदर. What about the others? जब तक ये सबको अवेलेबल नहीं होती जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम, you cannot, you can say, make it to be used for public. So we have to regulate it. इसको regulate करना है, but ये जरूर birth stage के ऊपर, birth के बाद embryonic stage पे, embryonic time पे आप gene editing कर सकते हो. Now, third, it is saying human induced pluripotent stem cells can be injected into embryo of a pig. Yes, it can be done. ऐसा होता है. और ऐसा कैसे किया है? पिग के अंदर हम ह्यूमन बॉडी पार्ट्स बना रहे हैं. पिग के अंदर आपका लिवर ग्रो होगा. ओके, पिग के अंदर वो आपका बॉडी पार्ट पिग के बॉडी में ग्रो होगा. दैट विल बी डन थ्रू दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट. सो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड डी इज द राइट आंसर हियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. Now Navy plans another Vikrant size carrier before Vikramaditya retires. So INS Vikramaditya, we have to understand, we got it from Russians. It's a refurbished ship. जुगाड़ करके हमने बनाया है सस्ते दाम पे. ये इंडिया जाना जाता है. देखिए, it is India's largest aircraft carrier and a warship converted from Russian Navy's decommissioned Admiral Gorshkov. So Admiral Gorshkov was there. उसको refurbish करके, उसके अंदर parts नए डाल के, थोड़ा जुगाड़ करके हमने ये ship चलता किया है, and we are using it right now. The point is this, it is, you can say it is working like a newly built ship. पहली चीज है, कम पैसे में हमने कर लिया. Now you also got to understand the technology in that. आप technology भी यहाँ पे आप तक पहुँच गई. अब इसके अंदर एक major point है, whether we need more, you can say, aircraft carriers or not. क्या हमें अबे आज की डेट में सबमरीन के ऊपर फोकस करना चाहिए या एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर फोकस करना चाहिए? ये एक मेजर डिबेट चल रही है. ओके, दिस इज द मेजर डिबेट दैट इज गोइंग ऑन. एंड व्हाई दे आर सेइंग दैट इट्स अ डिबेट? बिकॉज इट्स अ वेरी कैपिटल इंटेंसिव थिंग. बहुत पैसा लगता है अगर आप एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हो. नाउ सम एक्सपर्ट्स, जो वॉर एक्सपर्ट्स होते हैं, they are of this opinion that if you are just having a warship, aircraft carrier आपने खाली रख लिया, उसके साथ आपने पूरा fleet नहीं बनाया, if it is not in a shape of fleet, it will be just like a sitting duck. कोई भी enemy आराम से इसे टारगेट कर सकता है. तो ये एक मेजर चीज है. क्लियर है? अब देखिए, हिस्ट्री हमें क्या सिखाती है. हमने पाकिस्तान की एक सबमरीन डुबाई थी, PNS गाजी. अगर आपको पता हो, PNS गाजी वॉज संक नियर द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम. अब PNS गाजी कर क्या रही थी? PNS गाजी एक इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर का पीछा कर रही थी. वो उस एयरक्राफ्ट कैरियर को टारगेट करती हुई, ढूंढती हुई आगे बढ़ रही थी, और वो पहुंच गई कहां? विशाखापट्टनम की कोस्ट पे. So if you are not maintaining a full fleet around an aircraft carrier, this is what could happen. We also have a lesson from World War II. What happened? Pearl Harbor पे क्या हुआ था? Pearl Harbor attack, after which US entered the World War II. A full fleet of US Navy, it was targeted there. और ये बोला जाता है कि वहां पे जिन शिप्स को नुकसान पहुंचाया था, somewhere around 1/3 of the US Navy was impacted. बहुत सारे लोग मरे थे, बहुत सारे शिप्स जापानीज एयरप्लेन्स ने डुबा दिए थे. Why I am saying submarines are important? Because submarines can't be detected. सबमरीन पानी के नीचे है, ऊपर से आपका जेट जा रहा है, जाता रहेगा, वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा. So we have to understand this thing. That's why they are debating whether it will be helpful for us
to have, whether it will be helpful for us to have another aircraft carrier or not. तो द हिंदू के अंदर इसके ऊपर पहले भी डिबेट स्टार्ट हुआ है. ओके, अब बात ऐसी है, करें कि नहीं करें ये तो है. अब इसके पॉजिटिव पॉइंट्स देख लीजिए आप क्या क्या हैं. सो बेसिकली इट प्रोवाइड्स, इट इज लाइक अ बिग नेवल बेस. जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, उसके एक बात समझनी है कि बहुत बड़ा नेवी का बेस है वो एक तरीके से. लॉट ऑफ मिशंस कैन बी डन. सोर्टीज कर सकते हैं आपके फाइटर जेट, इंफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं दूर तरफ से. ओके, इट इंक्रीजेज योर कैपेबिलिटी टू बेसिकली टारगेट सिटीज. आप किसी भी नेवल जो बेस होता है किसी शहर के अंदर, आप उसको टारगेट कर सकते हो. इट ब्रिंग्स प्राइड एंड इट इज पार्ट ऑफ आवर आइडिया ऑफ ब्लू वाटर नेवी. ओके, तो ऑलरेडी हमारी कैलकुलेशन तो ये कहती है दैट इंडियन नेवी रिक्वायर्स 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स. हमारे पास अभी एक है फंक्शनल, वन विल बी रेडीली available in some years, and then we can think about the third one. So at a time, this is the idea, this is the capability that we have to work upon. Now there is another debate about it. एक और debate चलती है यहाँ पे, किस क्लास का आपको एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए. क्लास मतलब किस साइज का. ओके, the present one that we have, Vikramaditya, Vikrant, okay, they are of, you can say, 44,000 ton. ये 44,000 टन क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो हम आज की डेट में हमारे पास रखते हैं. द पॉइंट इज दिस, दे हैव द कैपेबिलिटी टू कैरी समवेयर अराउंड 25 to 30 फाइटर जेट्स. 25 से 30 फाइटर जेट के ही ये लोग अपने पास इसके ऊपर उड़ सकते हैं. दिस इज द कैपेसिटी दैट दे हैव. नाउ लुक एट द यूएस नेवी. ओके, यूएस नेवी इज हैविंग सम एयरक्राफ्ट्स व्हिच आर एज बिग एज 1 लाख टन. ये 1 लाख टन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनके पास, एंड दे हैव मतलब मल्टीपल नंबर्स ऑफ देम. सो ईच वन ऑफ देम कैन कैरी समवेयर अराउंड 120 फाइटर जेट्स. 120 फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे आ सकते हैं. ये यूएस नेवी ऑपरेट करती है. चाइनीज, योर यू कैन से कॉम्पिटिटर्स, Chinese are focusing on 65,000 to 70,000 ton aircraft carrier, which will have the capacity to carry somewhere around 60 to 70 fighter jets. Chinese Navy इस पे इन्वेस्ट कर रही है. तो अब सवाल बनता है, क्या इंडिया को 44,000 टन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे फोकस करना चाहिए या फिर चाइना की तरह 67 to 70,000 पे फोकस करना चाहिए. So this is the debate that is there. Another debate is that whether we should seriously buy aircraft carriers or we can, you can say, focus on the submarines. क्या हम वाकई एयरक्राफ्ट कैरियर पे फोकस करते रहें या सबमरीन की तरफ भी जाएं. So these are the debates that are there regarding this thing. हालांकि हमें चाहिए होगा, चाइना इन्वेस्ट कर रहा है तो आपको भी करना पड़ेगा. ठीक है जी. So right now this photograph is there in your today's newspaper, which is talking about the India's humanitarian aid assistance that we are providing to टर्की. ओके, तो टर्की के लिए हम क्या भेज रहे हैं, किस मिशन के अंदर भेज रहे हैं. हेयर इट इज रिटन ऑपरेशन दोस्त. इसको बोलते हैं ऑपरेशन दोस्त. हम ऑपरेशन दोस्त कर रहे हैं, एड प्रोवाइड कर रहे हैं टू टर्की अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज. नाउ प्लीज पे अटेंशन हियर. सो वी डू हैव, यू कैन से, अदर ऑपरेशंस दैट वी कैरिड आउट. अब उनके देखो यूपीएससी में प्रीलिम्स में क्वेश्चन कैसे बन सकता है. यहाँ पे क्वेश्चन कुड बी अराउंड मैच द फॉलोइंग, कि ये 3-4 नाम होंगे और आपको बोलेंगे कि आप उनको मैच अप कीजिए. ओके, अच्छा, देन दे कैन आस्क दिस थिंग, हाउ मेनी ऑफ दीज आर करेक्ट. भी इनमें से कितने करेक्ट हैं, 2 करेक्ट हैं, 3 करेक्ट हैं, 4 करेक्ट हैं. मतलब एलिमिनेशन को हटाने के लिए आजकल तो यूपीएससी ऐसे भी सवाल पूछ रहा है ना, जिसके अंदर एलिमिनेशन टेक्निक भी काम नहीं करती है. मैच द फॉलोइंग में खासकर एलिमिनेशन लग जाती थी. सो हमारा ये जो ऑपरेशन दोस्त है, वी आर प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू टर्की एंड सीरिया इन दैट. Then we did ऑपरेशन राहत इन यमन. हमने यमन में ऑपरेशन राहत किया था. ऑपरेशन राहत में क्या किया था हमने, those Indians who were, you can say, stuck there. Yemen had a civil war like situation, अभी भी चल रहा है civil war वहाँ पे. So हमने वहाँ से निकाला था इंडियंस को. Then we had ऑपरेशन मैत्री इन नेपाल. जब नेपाल में अर्थक्वेक आया था वहाँ हमने लगाया था ऑपरेशन मैत्री. अगला देखिए, we had carried out Sankat Mochan. Sankat Mochan was done in South Sudan. South Sudan also had this, you can say, civil war like situation.
इंडियंस वर स्टैंडेड देयर एंड वी हेल्प देम आउट, हमने उनको वहां से बाहर निकाल दिया था, ठीक है जी। फिर हमारा था ऑपरेशन गंगा इन यूक्रेन, वहां पे भी इंडियंस जो फंसे थे आप उनको निकाल के लेके आए थे, ऑपरेशन गंगा था, ये यूक्रेन में हुआ था। देन वी कैरिड आउट वंदे भारत। वंदे भारत कहाँ किया था हमने? वंदे भारत किया था कोविड के अंदर, ओके। इंडियंस हु वर स्टैंडर्ड फ्लाइट, यू कैन से, हमने लगाया था एयर बबल और वहां से हम इंडियंस को लेके आ रहे थे, वंदे भारत था। देन वी हैड समुद्र सेतु। अब ये समुद्र सेतु क्या था? वी प्रोवाइडेड ऑक्सीजन cylinders, big oxygen cylinders to different countries which were facing the shortage of oxygen. बहुत से कंट्रीज के अंदर कोविड टाइम पे ऑक्सीजन की शॉर्टेज हो गई थी, एंड देयर अगेन इंडिया वाज टू हेल्प देम आउट, और हमने उनकी मदद की थी यहाँ पे। सो वी हैड दिस समुद्र सेतु during the COVID time. We provided them with the oxygen cylinders. So this was the arrangement. This is what India did in multiple, you can say, missions. So here is the list, और ये prelims की पूरी list आपके पास होनी चाहिए। क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन मल्टीपल वेज, मैंने बताया मैच द फॉलोइंग को लेके भी सवाल बन सकता है, यूपीएससी कुछ भी चैलेंज लेके आती है। आगे बढ़ते हैं, सो विल मूव टू द नेक्स्ट। नाउ नॉर्थ कोरिया फायर्स मिसाइल, सो दिस एरिया इज इन न्यूज अगेन। नॉर्थ कोरिया अटेंशन सीकर की तरह काम करता है और वो रेगुलरली मिसाइल फायर करता रहता है। क्यों करता रहता है? देयर इज अ प्लान, ओके। सो बेसिकली few days back US and South Korea carried out a drill, okay, वहां पे ड्रिल की गई थी। in response to that North Korea, they fired these particular missiles, intercontinental ballistic missile। अब इसके पीछे की जरा स्टोरी आप सुने, ओके। नॉर्थ कोरिया हैज द न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और वो बॉम्ब कहां से आया है? वो बॉम्ब आया है पाकिस्तान से, ओके। अच्छा, अब ये क्या एक्सचेंज था? पाकिस्तान हैंडेड ओवर द बॉम्ब टेक्नोलॉजी टू नॉर्थ कोरियंस, नॉर्थ कोरियंस प्रोवाइडेड पाकिस्तान विद द मिसाइल टेक्नोलॉजी, ओके। तो पाकिस्तान के पास आजकल बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, गोरी वोरी वो चलाते रहते हैं और कहते हैं कि इंडिया के सारे शहर हमारे रेंज में है। सो दैट टेक्नोलॉजी दे गॉट इट फ्रॉम नॉर्थ कोरियंस, इट वाज अ गिव एंड टेक, ओके। यहां से सारी चीज शुरू हुई। नाउ North Korea creates trouble for countries like Japan. It is not just for the South Koreans, it creates trouble for Japan. And the point is this, North Korea is only backed by China. एक ही दोस्त है North Korea का, वो है China. So with this support, they are operating. Now, why this particular news is important? Because please pay attention, in prelims 2018, the question was asked. So the question was around this, that THAAD, that is Terminal High Altitude Air Defense, THAAD, it's an anti-missile system. It said that THAAD sometimes in news, it is, you can say, associated with what? ये क्या है? So basically, it is an American anti-missile system. So at that time when North Koreans, they were firing the rocket, जैसे दिवाली पे हम पटाखे बजाते हैं, ऐसे ही नॉर्थ कोरिया के लीडर को भी दिवाली बनानी थी। he feel very happy, he feels very happy, he claps जब भी मिसाइल ऊपर जाती है। In that particular thing, when this was done, so this terminal high altitude air defense system, it was deployed by United States in Japan and South Korea, कि अगर गलती से नॉर्थ कोरिया कभी हमला करता है तो ये एंटी मिसाइल सिस्टम विल बी इन प्लेस, एंड दिस एंटी मिसाइल सिस्टम विल स्टॉप द इनकमिंग मिसाइल। तो ये सिस्टम वाज प्लेस्ड एंड दैट्स व्हाई इट वाज इन न्यूज। सो दिस टाइम, लाइक, इसका काउंटर पार्ट रशियन कौन सा है? So we do have S-400 anti-missile system that India bought from Russia, जो कि हमने रशिया से खरीदा है। This is S-400 missile system, okay. अब the best part क्या है इसके अंदर? देखिए, S-400 missile system चाइना के पास भी है, हमारे पास भी है, ठीक है ना। There is another S-300 missile system, वो यूक्रेन के पास भी है। तो ये इस तरीके से चल रहा है काम, प्रैक्टिस करते रहते हैं हम। चाइना के पास हमें पता है S-400 मिसाइल सिस्टम है, आपके पास भी है। आप प्रैक्टिस कर लो अपने एयरक्राफ्ट को कैसे, मतलब चाइना के रडार में उनके डिटेक्शन से कैसे बचाते हो।
So this is how things are done. Okay, accordingly you can plan. So this is what we have majorly in this. Now let's look into this part. थोड़ा अब हम न्यूज़पेपर को देखते हैं, बची हुई चीज़ें कुछ अगर रह गई हो तो वो भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. ओके, मेजर थिंग्स हैव ऑलरेडी बीन डन. नाउ let's look into this. So just wait for another 1 minute. Okay, so here Indians go west, take up the residence by investment. Okay, this is what we have covered. Now clash breaks out over the Dalit offering prayer in MP Shiv temple. See, this is the trouble that we are still dealing with. जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है वो आज तक चलता जा रहा है. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड, Indian Constitution does provide protection. Okay, we have abolished untouchability, and we do have, you can say, Article 15, which assures that the discrimination based on caste, color, religion, it should end. So those things are there, but all depends upon the implementation. चलो ठीक है, आपने implementation भी करा दी. When you are fighting against caste system, it's a behavioral change that we have to facilitate. जब तक आपका behavior change नहीं होगा तब तक आप इस problem के साथ deal नहीं कर पाएंगे. You have to educate the masses. Masses को educate करना पड़ेगा. All these things have to be done. It is not possible to facilitate these things in a piecemeal approach. आप piecemeal approach के साथ नहीं चल सकते. आपको holistic way में बात करनी पड़ेगी. एक तरफ लॉ को इंप्लीमेंट करवाना पड़ेगा, दूसरी तरफ एजुकेट भी करना पड़ेगा. दिस इज व्हाट वी हैव टू डू हियर. देन दिस वाज कवर्ड. ओके, बाकी मेजर चीजें हम कवर कर ही लिए हैं सारी की सारी. अब सीधा चलते हैं आपके एडिटोरियल पेज के ऊपर. ओके, एडिटोरियल पेज पे देखते हैं क्या है. यहाँ पे कुछ है क्या? सेंट्रल 7 कोर स्टेट्स. ओके, ड्रॉट लाइक सिचुएशन. देखो इंडिया के अंदर यही पैराडॉक्स है. कभी केरल के अंदर बाढ़ आने का डर रहता है, अब वहाँ पे बारिश नहीं हो रही थी. चलता रहता है सब. Curious case of disqualification we have already covered. A picture of Islam that is quite different, so you can read it. Okay, and why the caste survey in Bihar worries the BJP. Okay, so basically like there are chances that it might create some trouble. थोड़ा बहुत trouble होने का डर है इसके अंदर. And covered in the sense like it will further increase the claim for caste based reservation. Okay, so they are carrying out this caste based survey where they will get to know that like what's the number of a particular caste group is, and then you can compare how much representation they do have in the services. So those things will be put in place. देखते हैं इसमें क्या होता है. इससे कुछ solution तो I doubt आएगा इस problem का. The only solution is that you facilitate education. Okay, now income tax raids surge amid the poor conviction rate. See, you need to understand one thing here. So economic survey 2017. Okay, now Arvind Subramanian was the chief economic advisor at that time. It pointed out about tax terrorism. कि एक तो इंडिया के अंदर टैक्स टेररिज्म है. जो पूरा टैक्सेशन डिपार्टमेंट है वो डराता है कि हम आपको टैक्स लगाएंगे, ये टैक्स लगाएंगे, वो टैक्स लगाएंगे, आप ऐसे करो वैसे करो, दिस एंड दैट. दिस वाज पॉइंटेड आउट. द अदर थिंग दैट दे पॉइंटेड आउट वाज दैट जबरदस्ती का लिटिगेशन. Now tax based disputes, हर मामले लिटिगेशन के अंदर जाते हैं, डिस्प्यूट में जाते हैं. एक ट्रिब्यूनल अगर जजमेंट देगा कि यहाँ पे टैक्स नहीं बनता है तो गवर्नमेंट उसको जरूर कंटेस्ट करेगी कहीं और, किसी दूसरी जगह पे. ओके, किसी दूसरी जगह पे. सो अनीश, आई कैन आंसर योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी कंक्लूड दिस सेशन. आप कह रहे हैं कि आप क्या प्रीलिम्स अभी क्लियर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर, बताते हैं कैसे होता है. चलिए, सो ये पॉइंट है कि हर मामले को जब आप कंटेस्ट करते हो तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है. ओके, इन द सेंस दैट सपोज देयर इज अ टैक्सेशन डिस्प्यूट समवेयर अराउंड 7 लाख करोड़, 7 लाख करोड़ का टैक्सेशन डिस्प्यूट अगर है, दैट 7 लाख करोड़ विल बी स्टक इन दैट पर्टिकुलर लिटिगेशन. ना तो वो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ रहा. अगर वो 7 लाख करोड़ रिलीज हो जाए, जस्ट थिंक अबाउट इट, हाउ मच मोर इट विल कंट्रीब्यूट टू द जॉब क्रिएशन. कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, कितनी नौकरियां और पैदा होंगी. बट दिस इज द अननेसेसरी लिटिगेशन दैट वी कैरी आउट एंड इट्स अ ट्रबल. पूरी यहाँ पे प्रॉब्लम वहां से आती है. सो इट वाज क्वाइट क्लियरली हाईलाइटेड बाय योर
इकोनॉमिक सर्वे एंड इट हैज़ बीन पॉइंटेड आउट। तो ये एक मेजर मुद्दा है जो चलता है। आगे बढ़ते हैं। सो वी कवर्ड दैट, ओके। सील्ड कवर ज्यूरिसडिक्शन कवर कर लिया, सिकल सेल एनीमिया कवर कर लिया, ओके। मेजरिंग एन इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक मोमेंट। व्हाट इज दिस मैग्नेटिक मोमेंट? So basically it is the tendency that an electron is having to attract towards a magnetic field, or how it is going to move in a particular magnetic field. किस तरीके से वो वहाँ पे move करेगा, किस तरीके से वो react करेगा, action लेगा, those things are defined by the magnetic moment. Okay, so this was the thing. अच्छा, नेवी ने प्लान कर लिया, ये मैंने बता दिया आपको। Okay, so these things have been done. ये political है, ये हम लोग कवर नहीं करेंगे पॉलिटिकल, ठीक है ना। ऑपरेशन दोस्त टर्की भेज दिया आपने, ओके। एंड इंडिया प्लान्स टू एक्सपोर्ट सोलर पावर, ओके। दिस इज व्हाट इज बीइंग स्टेटेड। सी, यू नीड टू अंडरस्टैंड, वी हैव सीरियसली डेवलप अ गुड यू कैन से कैपेसिटी ऑफ सोलर पावर प्रोडक्शन हियर। नाउ इंडिया वाज टू हैव इंस्टॉल्ड 175 gigawatt of energy from renewable source by December 2020, but till now it has installed only 120 gigawatts. तो जो हमारे टारगेट हैं उससे तो हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं, नो डाउट, बट स्टिल वी आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, जरूर उस दिशा में बढ़ रहे हैं। एंड राइट नाउ वी आर थिंकिंग ऑफ एक्सपोर्टिंग। सो वन थिंग इज दिस, पहले तो आपको कंपोनेंट इंडिया के अंदर बनाना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत हो चाहे मेक इन इंडिया हो, मेक श्योर दैट दैट कंपोनेंट इज मैन्युफैक्चर्ड डोमेस्टिकली। यू हैव टू रिड्यूस योर इंपोर्ट डिपेंडेंस। हर हालत में आपको अपनी इंपोर्ट डिपेंडेंस को हटाना पड़ेगा। इस देश में आपको सोलर पावर के इक्विपमेंट को बनाना पड़ेगा। एक तो ये चल रहा है, दूसरा हमारा फोकस आज की डेट में हाइड्रोजन पे है। क्लियर? सो बोथ आर गुड यू कैन से थिंग्स एंड वी आर वर्किंग ऑन दोज डायरेक्शन। तो हमारा विजन तो एकदम क्लियर है, बट ये जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है और ये छोटी मोटी चीजें हैं, वी हैव टू एड्रेस दोज पर्टिकुलर थिंग्स, ओके। ये आप कर लो, प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सो दिस वाज द पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, ओके। ब्रिगेडियर मिश्रा स्worn इन एज न्यू एलजी ऑफ लद्दाख। लद्दाख को नए एलजी मिल गए हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, उनके एलजी अलग अलग हो सकते हैं। तो ये है यहाँ पे अरेंजमेंट। क्लियर? ऑलरेडी वहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, डिमांड कर रहे हैं कि 6th शेड्यूल में हमें डालें। तो ये चीज़ है। अब आप आगे देखिए, ये हमने कवर कर लिया। अब इंटरनेशनल पेज पे चलते हैं, वहाँ थोड़ी और हमें न्यूज़ मिलेगी, ओके। ब्लिंकन वांगी ट्रेड एक्विजिशन ओवर शूटिंग डाउन ऑफ स्पाई बैलून। चाइना यूएस खेल रहे हैं। ये देखो, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ? यूएस एंड चाइनीज इकोनॉमीज, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अब ये यूएस और चाइना की जो इकोनॉमी है ना, एक दूसरे के साथ बायोलेटरली $600 बिलियन से ज़्यादा का ट्रेड कर रहे हैं, और एक दूसरे के गुब्बारों को गोली मार के दे आर क्रिएटिंग अ न्यूज़, ओके। न्यूज़ कैसे बनी? बिडेन आने वाले टाइम पे इलेक्शन के अंदर जा सकते हैं। ही हैज टू अपीयर लाइक अ स्ट्रॉन्ग लीडर, कि हाँ, इनके अंदर भी स्पाइन है, ही हैज द पावर टू टेक टफ डिसीजन, दिस एंड दैट। तो एक तो वो पॉइंट चल रहा है। दूसरा पॉइंट चल रहा है चाइना का। जी जिनपिंग, नाउ ही इज अ स्ट्रॉन्ग मैन। जी जिनपिंग नेवर वांटेड टू अपीयर टू बी अ वीक। सो इसीलिए एक दूसरे को टारगेट चल रहे हैं। इसका कुछ निष्कर्ष नहीं निकलना है, सिर्फ मीडिया ऑप्टिक्स चल रही है। दिस न्यूज इज गोइंग टू डाई डाउन इन कपल ऑफ डेज, ओके। क्योंकि गुब्बारा उड़ा, गुब्बारा फूट गया। इस न्यूज में कुछ खास है ही नहीं, ठीक है ना। दैट वाज द पॉइंट। नाउ इजरायली एयर स्ट्राइक ऑन सीरियन कैपिटल किल्स 15 इंक्लूडिंग 2 वुमेन। सो ये देखिए, ये एक इजराइल कर रहा है, सीधा बम फोड़ रहा है, मिसाइल गिरा रहा है, टारगेट कर रहा है अपने ओपोनेंट्स को, और दूसरी तरफ वो गुब्बारे मतलब एक दूसरे को गुब्बारे खेल रहे हैं। नाउ दिस इज द मेजर न्यूज हियर, बिकॉज इट कैन क्रिएट यू कैन से मोर टसल। सीरिया को टारगेट कर रहे हैं यहाँ पे, ओके। हाउ विल सीरिया रिस्पॉन्ड? क्या सीरिया वाकई रिस्पॉन्ड करेगा? देयर इज यू कैन से आई डाउट। सीरिया डजंट हैव दैट कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड हियर, ओके। सो दिस वाज द थिंग। नाउ ये पूरी न्यूज बनी है। अदर देन दैट वी हैव कवर्ड दोज थिंग्स, ओके। So this is what we have for today's session. Tomorrow's session will be definitely there at 8 a.m. in the morning. Please do spread the name. Now, let me look into the doubt or the concerns of Anish. Anish is asking, is it possible to clear prelims if you start studying now? Okay. तो ये सवाल है, अनीश ने पूछा है
Is it clear? Is it possible to clear prelims? Yes, it is possible. It precisely depends upon your strategy. आपकी strategy क्या रहेगी? I can say that it is still possible to clear prelims, but clearing mains might be difficult at present. इस stage पे mains clear करना थोड़ा difficult होगा if you are not prepared with your optional. अगर आपका optional तैयार नहीं है तो फिर आप इसको कैसे clear करेंगे? Okay, थोड़ा difficult हो जाएगा ना बिना optional तैयार किए. Now it depends upon your background. एक तो आपका background कैसा है, किस particular subject में आपकी graduation है, those things will play into major role here. Clear है? क्योंकि ऑप्शनल भी तो डिसाइड करना है ना भाई. अभी सिर्फ प्रीलिम्स क्लियर करके आगे पेपर देना पड़ेगा, मेंस का उसमें ऑप्शनल आएगा. अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं हो तो कैसे बढ़ोगे आगे? अब दूसरी बात इसको समझें, प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए. द बेस्ट यू कैन से, देखिए NCERTs, how good you are with NCERTs, that will decide your selection here. If you have covered your NCERTs in detail, अच्छे से आपने एक एक चीज समझ के एक एक पॉइंट NCERT का क्लियर किया हुआ है, समझा हुआ है, एंड यू आर रिवाइजिंग इट मल्टीपल टाइम, आप उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर रहे हो, then you can say it is possible to clear this exam. Apart from that, एक तो ये हो गया. ओके, एक तरफ हम एनसीईआरटी को रेगुलरली पूरे अच्छे तरीके से रिवाइज करते जा रहे हैं. ठीक है, ये एक्शन हो गया. सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू डू, एवरी डे attempt the test, joint test series. Okay, we also provide daily test series. हमारी शतक करके daily test series है जिसके अंदर हम रोज टेस्ट कंडक्ट कराते हैं. So that is available. Okay, that is available. No, see, NCERTs you have to read out. I'm not saying that you have to go with the NCERT test series. NCERT you have to read. Along with that, we do provide Shatak test series for daily test, and we do provide the explanation. This is what you have to do till your exam. Specific days are left. Follow this strategy and definitely it will increase the chances of your selection. Definitely इससे आपको फायदा होगा. You will be constantly in the exam mode. Your mind, your brain cells will be activated in that mode, and this is going to fetch you some result. It may fetch, I am not saying that it will, but it may fetch some positive result for you in the prelims exam. So you can definitely try this particular method. It may help you out in your selection process. This is the way out we have. So NCERT को रिवाइज कीजिए और साथ साथ टेस्ट लगाइए हर रोज, उनका एक्सप्लेनेशन देखिए, एंड दोज थिंग्स विल बी लाइक अ कंटेंट फॉर योर प्रिपरेशन. आप कुछ एक सिलेक्टिव चीजें करेंगे, कॉस्ट टू बेनिफिट यहाँ पे ज्यादा है, कम एफर्ट में ज्यादा लर्न करने को मिलेगा, कम टाइम में ज्यादा चीज सीखने को मिलेगी. So this is the method that you can follow here. Okay, so Shatak test series, yes, it's a holistic one. So Shatak test series is holistic. So we provided the two options. One is 1999, which will include your 50 test. ये आपके GS test है. Then GS plus current affairs. Okay, so if you are paying 2999, 1000 rupees extra, you will get 10 more tests. Those are going to be your full test. So in all total we are offering you 60 tests. 60 test की series है. In this case the 50 test that we'll be having, those will possess 50 questions. उसमें होंगे 50 question, and the other 10 tests that are there, they are going to be a full-fledged one, will be having 100 question each. So this is what you can prescribe for. It is helping students. We are getting really good positive, you can say, result, and not result, positive response from the students.
means how it is benefiting them. One is that they are carrying out their streamlined preparation. एक तो अपनी preparation को वो streamlined करके अच्छे तरीके से कर रहे हैं. It has provided them with the organized preparation at the last moment of your exam. अब यहाँ पे confusion का कोई डर नहीं है, आप organized तरीके से इन सवालों को कीजिए. So this is the way out that we have, and this is what we have for today's session. I hope your concerns and queries are addressed. Please do spread the name regarding this, The Hindu, regarding this channel, the IAS Hub. So this is what we have for today. Thank you very much.